So the topic that we are starting up with today, it is your accounting standards. Accounting standards में हम क्या कुछ discuss करने वाले हैं? We are going to discuss about the introduction, the meaning, what is the nature of standards, what is the need of standards, their advantages and disadvantages, the way they are set it up in India, the way they are issued, what are the standards, how do we comply with them, the applicability, and then finally we are going to discuss about international financial reporting standards. Coming to the introduction, which is there on page number 2, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते आए हैं, over the time period, over the years, they have evolved. Why they have evolved? जैसे जैसे पढ़ते गए, जैसे जैसे चीजों का एक्सपीरियंस ज्यादा होता गया, काम बढ़ते गए, एक्सपीरियंस लोगों का बढ़ रहा है, जो अकाउंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बढ़ने लग पड़ा है, people are practicing more of it. So as a result of which जो हमारे जो transactions थी, जब enterprises, they were recording them on the basis of principles, but the appropriate guiding accounting policies were not available. Accounts के साथ कोई ज़्यादा in-depth deal करने वाली about different accounting aspects that was not available with it. So जैसे जैसे diverse set of needs शुरू होता गया, तो concept आया standards का. Standards कहाँ से आए? Standards सबसे पहले आए from England. इंग्लैंड ने टर्म इंक्लूड करी स्टैंडर्ड बाय सेटिंग अप देयर अकाउंटिंग स्टीयरिंग कमेटी इन द ईयर 1969. उन्होंने सबसे पहले अपने प्रिंसिपल्स को रिप्लेस करके दे नेम्ड इट एज स्टैंडर्ड्स. जैसे जैसे ये चीज बढ़ती गई तो यूएस में, अमेरिका में दैट बिकेम मोर इम्पोर्टेंट, इट बिकेम मोर पॉपुलर, और एक बोर्ड बन गया, एक बोर्ड बना फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन द ईयर 1973, जो उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने लग पड़े. इंडिया में ये चीज कब पॉपुलर हुई? इंडिया में ये चीज पॉपुलर हुई इन द ईयर 1977, जब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक बोर्ड सेट किया जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. अब ये जो हम स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड? अ स्टैंडर्ड, इट इज एन अग्रीड अपॉन क्राइटेरिया of what is proper practice in a given situation, a basis for comparison and judgment, a point of departure when variation is justifiable by the circumstances and reported as such. Standards are not designed to confine practice within rigid limits, but rather to serve as guideposts to truth, honesty, and fair dealing. They are not accidental but intentional in origin. They are expected to be expressive of the deliberately chosen policies of the highest types of businessmen and the most experienced accountants. They direct a high but attainable level of performance without precluding justifiable departures and variations in the procedures employed. एक स्टैंडर्ड क्या है? एक ऐसा क्राइटेरिया जिसको काफी सारे बिजनेसमैन, काफी सारे अकाउंटिंग बोर्ड्स, एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट्स ने उस चीज को माना कि एक सिचुएशन में हमने कैसे इस चीज को अप्लाई करना है, कैसे इस चीज को प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से हमने अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं. ये कोई रिजिड लिमिट नहीं बना रहे हैं कि ऐसे ही करना है. They are providing you a boundary, they are providing you a guiding area कि आपने कैसे उस चीज से डील करना है. अगर एक बेसिक सी डेफिनेशन आपको याद करनी है तो it is given in the paragraph. It says accounting standards deal mainly with the financial measurements and disclosures and can be considered as a technical response to call for better financial accounting and
रिपोर्टिंग, हम हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स को बेटर वे से बना सके, रिपोर्ट्स हमारी बेटर हो, अकाउंट्स हमारे यूनिफॉर्म हो, इसीलिए हमें जरूरत है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की. Accounting standard, they are set of policies or broad guidelines which are issued by the accounting body regarding the principles and methods to be chosen out of the several options that are available in order to prepare financial statements. These are the norms of accounting policies and practices for the treatment of different transactions. Is the meaning of accounting standards clear to everyone? किसी को कोई डाउट हो? नंदिनी, आकांक्षा, कोई डाउट? The students who are online with me, any doubts? So India में आपके accounting standards, there is a board called as Accounting Standard Board, which is set up by the Institute of Chartered Accountant of India. It was set up in the year 1977. वो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रेम करते हैं. इस बोर्ड का मेन काम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉर्म करना. ऐसे नहीं है कि जो मुझे अच्छा लगा, I'll make the rules, I'll make the norms according to that. If I am a member of the board, if I am taking care of the board, no. आपको कंसिडर करना पड़ता है कि क्या क्या डिफरेंट लॉज एप्लीकेबल हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, कस्टम्स क्या है, इस चीज की यूजेज क्या है, और हमने उसको इन लाइन लाना है विद योर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ICAI ने अभी तक देयर आर 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं विच आर मैंडेटरी फॉर द कंपनीज. जो आपका कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जो रजिस्टर्ड होता है कंपनीज एक्ट के अंडर, उसके अंडर इन्होंने 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से हैं वो दिए. जो ऑडिटर हैं, आपको पता है ना, फाइनेंशियल अकाउंट्स कंपनीज के ऑडिट होते हैं. ऑडिट होने का मतलब होता है चेक होना. जब ऑडिटर चेक करता है, वेरीफाई करता है, वो ये भी चेक करता है कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बने हैं कि नहीं बने. जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर. फ्लेक्सिबल जब हम बोल रहे हैं, वी आर सेइंग दैट दे आर इन द सेंस दैट देयर आर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस दैट आर एक्सेप्टेबल. Companies, they are free to follow the practice that is best suited to them as per their disclosure. But एक consistency होनी चाहिए है. ये ना हो कि आपने इस साल एक मेथड यूज किया, अगले साल आप कोई और मेथड यूज कर लो. Let's suppose for depreciation, जो आपने depreciation चार्ज करनी है, जो आपने wear and tear कैलकुलेट करनी है, आप एक साल कोई और मेथड यूज करते हो, दूसरे साल कोई और, तीसरे साल कोई और. So that ways excessive switching of alternatives should not be there. Whatever method you choose, whatever method the company choose, they should follow that. Now, काम तो देखो concepts और conventions से भी चल रहा था, but accounting standards की क्यों जरूरत पड़ी? What was the need of accounting standards? सबसे पहला, removal of confusing variations. हर एक लैंग्वेज को यूज करने के अपने सेट ऑफ रूल्स, अपने सेट ऑफ नॉर्म्स होते हैं. इंग्लिश की बात करें तो ब्रिटिश इंग्लिश इज डिफरेंट, यूएस इंग्लिश इज डिफरेंट, इंडियन एक्सेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश दैट इज डिफरेंट. सो सेम वेज आपके अकाउंटिंग के भी अपने रूल्स एंड नॉर्म्स हैं. देयर आर ऑल्टरनेटिव चॉइसेस दैट आर अवेलेबल, जिसके कारण देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. There were different practices that were being followed, as a result of which there was confusion. Stock को कैसे value करना है, depreciation कैसे charge करनी है, XYZ, a lot of things that need to be taken care of in accounting. So in order to remove these confusing variations, कि कौन सी variation follow करे, कौन सी company कौन सा method follow करेगी, there was a need for accounting standards. Then came the second need was uniform presentation of accounts. आपके accounts कौन से हैं वो ऐसे होने चाहिए हैं
that they should be easily comparable, which means you should be able to compare the results of two accounting firms. दो फर्म्स का आप आपस में रिजल्ट कंपेयर कर सको, आप अपनी फर्म का ओवर द टाइम पीरियड रिजल्ट जो है वो कंपेयर कर सको. When there are wide variety of concepts, principles and conventions that are being followed, so आपका जो accounting है, जो आपने results बनाए हैं, it lacks uniformity. किसी फर्म ने कुछ कंसिडर किया होगा, किसी ने कुछ कंसिडर किया होगा, but when you are working under the company form of business, there is a rigid thing that you have to follow the standards. So that ways it will give uniformity also to the accounts that you have prepared. Then comes avoidance of manipulation. What do we mean by manipulation? When we say इसने manipulate किया है, what is the meaning of manipulation? कुछ चेंज करके बता रहे हैं हम, that is your manipulation. अकाउंट्स में हम चेंजेस को या अपने अकाउंट्स को बड़े अच्छा सा बताना किसको बोलते हैं? What is the term that we use? कल डिस्कस करी थी, विंडो ड्रेसिंग. सो ये मैनिपुलेशन ना हो, क्योंकि आपने अगर आप देखोगे कल जो हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए वो वेग नहीं है, कुछ सॉलिड तो वो गाइड नहीं कर रहे ना कि इस सिचुएशन में ऐसे ही करना है, नहीं, दे आर जस्ट गिविंग यू गाइडेंस कि आपने ऐसे काम करना है, कॉस्ट ऐसे कंसिडर करनी है, बिजनेस गोइंग कंसर्न मानना है, रुपी को स्टेबल मानना है, हर एक चीज मॉनेटरी यूनिट में एक्सप्रेस करनी है. So because of the vagueness of these concepts, the principles that are applicable, there are chances that firms can manipulate their accounts. The companies, they have this thing that they'll manipulate their accounts. The results will not show the true and fair view of the business concern. So आपके accounting standards ने ये manipulation को हटा दिया, क्योंकि उन्होंने अभी अगर हम लोग पढ़ेंगे there will be different criterias. Depreciation के लिए ये standard है, stock valuation के लिए ये standard है. As a result of which manipulating the accounts that becomes tough. Then comes globalized business. We all know that we are in the era of globalization. Everything is opening up. The firms from overseas, they are operating with their units over here. The Indian firms, they are operating overseas. So सबके accounts जो हैं, because especially of the MNCs, multinational corporations, they should be in line with each other. They should be aligned. They should be similar. बच्चा उठ जाओ, last bench, इधर आ जाओ. So सबको standardize करने के लिए, इकट्ठे करने के लिए, the accounting standards were important. And lastly is disclosure beyond law. There are certain informations जो आपके concepts और conventions नहीं कहते हैं कि आप disclose करो. Whereas as per the rule, as per the norm, they should be disclosed so that the people who are investing their money into the business, they have proper information about it. So whenever a disclosure is required beyond the law, beyond the boundaries of the law, there are things that accounting standards they ask you to disclose for. Coming to the advantages of accounting standards, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? We have discussed the need, कि जरूरत क्या है. अब हम बात करेंगे फायदा क्या है. सबसे पहला, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी बेटर हो जाती है. सब कुछ सही से एक्सप्लेन्ड है, एज पर द नॉर्म्स एक्सप्लेन्ड है. So your standards, they help in improving the reliability of your financial statements. Then comes, it is helpful for the accounting professionals
जो अकाउंटेंट्स हैं, जो ऑडिटर्स हैं, जिन्होंने अकाउंट्स चेक करने हैं, देखना है कि आपने अकाउंट सही से बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को चेक करना. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए गाइड करते हैं. Then comes accounting reforms. What do we mean by reforms? Change लाना. तो जो accounting practices में है, because of the development of a framework, there is a framework that is available now. तो आपकी accounting की applicability में भी reforms आए हैं because of your accounting standards. And then determining managerial and corporate accountability. Standards, they help as a measurement tool, they help as a yardstick, so that we can assess, we can understand the performance of the management, कि management सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है. Standards की help से there is consistency in the financial statements, we can easily compare the data, as a result of which we can determine the managerial effectiveness, कि मैनेजमेंट आपकी अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही. Is the importance clear to everyone? Then comes your disadvantages of accounting standards. What are the disadvantages? एक थोड़ी सी rigidity आ जाती है. Flexible तो चाहे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, बट एक आपको बाउंड्री के बीच में ही काम करना पड़ता है, बिकॉज हर एक कंट्री का अकाउंट्स मेंटेन करने का उनका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो डिफरेंट है. तो उसके कारण देयर कैन बी डिफरेंसेस एंड द ट्रेडिशनल एंड द लीगल सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, एंड योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे कैन नॉट ओवरराइड द लॉ. लॉ के बियॉन्ड ये कोई काम नहीं कर सकते हैं. जो भी इनको काम करना है, जो एक कंट्री का लीगल फ्रेमवर्क है, ये उसी के अंडर काम करें. Clear? Any doubts until now? The students who are online, any doubts until now? Akashdeep, any doubt? No, ma'am. Okay. So coming to the standard setting in India. कि इंडिया में स्टैंडर्ड सेट कैसे किया जाता है. जैसे हमने बात करी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो आईसीएआई के अंडर बना हुआ है, वो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जोन से है वो सेट करता है. जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसमें एट प्रेजेंट देयर आर 16 मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स लाइक योर लॉ बोर्ड, इंडस्ट्री, Central Board of Direct Taxes (CBDT) and SEBI, which is the Security Exchange Board of India. Procedure क्या है स्टैंडर्ड सेट करने का? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है सबसे पहले देखता है that what are the broad areas, कौन से एरियाज हैं जिसके लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने चाहिए. उसको बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड असिस्ट किया जाता है एक स्टडी ग्रुप से. Study group क्या है? The group of people who have wide knowledge with that. They give their inputs about that topic, about that area that they are talking about. उसके बेसिस के ऊपर एक ड्राफ्ट बनाया जाता है स्टैंडर्ड का, रफ ड्राफ्ट, जिसमें आते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड, स्कोप क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे डिस्क्लोज करना है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो ये स्टडी ग्रुप ने रफ ड्राफ्ट बनाया है उसको पढ़ता है, उसको देखता है, उसको रिवाइज करता है. अगर कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत हो तो उसको वापस से स्टडी ग्रुप को भेजता है. एक बारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड उस ड्राफ्ट से स्पेसिफाइड है, वो उनको ठीक है कि हाँ जी ये ठीक है, इसमें चेंजेस की जरूरत नहीं है. सो देयर आर अ सर्टेन बॉडीज फिर जिनको वो ड्राफ्ट भेजा जाता है ताकि वो लोग उस स्टैंडर्ड पे अपने कमेंट्स दें. वो क्या क्या है? आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएसआई,
आपका जो आरबीआई है, एसबीआई है, स्कोप है, इंडियन बैंक एसोसिएशन है, या कोई भी ऐसी स्पेसिफिक स्टडी बॉडी which they feel is relevant should be privy of the information, या उनके पास नॉलेज है तो उनके कमेंट्स की जरूरत रहेगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक मीटिंग करता है, उसमें ये लोग ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं कि क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है, क्या मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं। जो एक्सपोजर ड्राफ्ट है, जो प्रपोज ड्राफ्ट है, फिर वो मेंबर्स के लिए उनके लिए इशू किया जाता है, ड्राफ्ट को फाइनलाइज किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की तरफ से। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड उसको सबमिट करता है काउंसिल ऑफ आईसीएआई। आईसीएआई क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वंस द बोर्ड मेक्स इट, सबसे इंफॉर्मेशन आ गई, सबसे सजेशंस आ गई, वो किसको देते हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया उसको पढ़ते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं एएसपी के साथ बैठ के, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के साथ। कोई रिवीजन रिक्वायर्ड हो तो उसको करते हैं, and thereafter your standard it becomes applicable. Clear? Any doubts with this? There are total of 32 accounting standards which were initially formed, but पहले एक accounting standard 6 था which related to depreciation accounting, उसको merge कर दिया गया accounting standard 10 और accounting standard 8 के साथ। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और 8 को हटा के आपने 10 स्टैंडर्ड पढ़ दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो था अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उसको मर्ज कर दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के साथ विच रिलेट टू इंटेंजिबल एसेट्स। आई डोंट वांट यू टू लर्न द नेम्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड कि क्या नाम है क्या है, बट यू शुड बी अवेयर कि कितने हैं, कौन सा मर्ज हो गया, कितने मैंडेटरी हैं, कितने नॉन मैंडेटरी हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, 31, 32 दे आर द नॉन मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स। नॉन मैंडेटरी मीन्स कि वो कोई जरूरी नहीं है आप फॉलो करो। तो you should be knowing the names of all these standards। एक बारी पढ़े होने चाहिए हैं, लर्न करने जरूरी नहीं कि बाय हार्ट आपको सारा 1 by 1 याद रहे। जिसको याद होते हैं वेल एंड गुड, लर्न इट। जिसको नहीं होते एक बारी बस ओवरव्यू ले लेना, उसको पढ़ लेना। क्लियर? स्टूडेंट्स हु आर ऑनलाइन विद मी, एनी डाउट्स? All right then students, I'll be ending this session here. Have a good day.